دی اسٹوری ویب کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب تک آپ اس کہانی کی 4 ایک ساتھ سن چکے ہیں، اب آخری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سن رہے ہیں دی اسٹوری ویب۔ کون روتا ہے یہاں رات کے سناٹے میں، میرے جیسا ہی کوئی ہجر کا مارا ہوگا۔ رابعہ اور ذیشان کی شادی کی خبر حیدر کے دل میں گویا تلوار بن کے لگتی ہے، ایسی تلوار جسے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح رہنے لگتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، وہ رات کو بھی جاگتا ہے اور دن کو بھی جاگتا ہے۔ ماں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتی ہے۔ سائیکالوجسٹ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا ہے جو شاید ہی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خود سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہے کہ انسان اگر غریب ہے تو کیا کوئی رشتہ اس کا نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں؟ کیا غربت کی وجہ سے دوست بھی غدار ہو جاتے ہیں؟ کیا محبت میں بڑی ناکامی کی وجہ غربت ہے؟ اس طرح کے کئی سوال حیدر خود سے کرتا ہے، مگر جواب نہیں ملتے۔ وہ بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ جیسا اس نے کہا میں ویسا ہی بننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بزنس کرنا ہے تو میں بزنس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی میں نے شروع ہی نہیں کیا تھا بزنس، ابھی سوچا ہی تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم میرے برابر ہو جاؤ گے تو میرے ابا جان مان جائیں گے۔ میں کوشش کرنے لگا تھا، حیدر خود سے کہتا ہے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیا اس کو میرے پہ یقین نہیں تھا، میری محبت پہ یقین نہیں تھا؟ حیدر گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے بے حد روتا ہے۔ وہ گزرے ہوئے دن ہی اس کے لیے یادوں کا سرمایہ تھے جن کے سہارے اس نے جینا تھا۔ حیدر اس صدمے کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آج نہیں کل سے ہی اسے کچھ ہوگا جس کے بعد شاید وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس صدمے کو برداشت کرنا دن بدن اس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ غم اس کے لیے جان لیوا بن رہا تھا۔ ایک دن حیدر کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ رضوانہ بیگم اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جاتی ہیں۔ ادھر دوسری طرف ذیشان اور رابعہ اپنی زندگی خوشگوار گزار رہے تھے۔ انہیں کسی کی فکر نہیں تھی کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ رابعہ نے پلٹ کے حیدر کی خبر تک نہیں لی۔ آخر وہ لیتی ہی کیوں؟ حیدر اس کا لگتا ہی کیا تھا؟ رابعہ حیدر کو بھول ہی چکی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے حیدر نامی شخص کوئی اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ دوسری طرف حیدر کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آخری سانسیں لے رہا ہے، مگر کسی کا انتظار ہے اسے۔ رابعہ ذیشان کے ساتھ محبت کی کئی باتیں کرتی ہے، اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ ذیشان کہتا ہے تم پاسٹ کو بھول جاؤ، وہ کہتی ہے میں بھول ہی تو گئی، تمہارے پیار کے آگے مجبور ہو کے میں بھول گئی سب کچھ۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم آتا ہے، اسے ذیشان گاڑی نکالنے کا کہتا ہے۔ رابعہ کہتی ہے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ذیشان کہتا ہے ارے بھائی رکو تو صحیح، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ دراصل ذیشان نے رابعہ کے لیے ایک نئی گاڑی خریدی ہوتی ہے اور ذیشان وہ گاڑی ہی آج اسے دینے جا رہا تھا۔ ملازم اتنے میں آ کے بتاتا ہے کہ سر گاڑی نکال دی ہے ڈرائیور نے۔ ذیشان کہتا ہے ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ ذیشان رابعہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگ تھی جسے میں جیت گیا۔ رابعہ کہتی ہے کون سی جنگ تھی ایسی جسے تم جیت گئے؟ وہ کہتا ہے بس ایسا لگتا ہے جیسے میں جیت گیا۔ پھر ذیشان رابعہ کا ہاتھ پکڑتا ہے
और वो दोनों चलते हुए घर के बाहर आते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगती है। मुख्तलिफ रास्ते गुजरते जाते हैं, कई मोड़ गुजरते जाते हैं। आखिरकार एक ऐसा मोड़ आता है जिसे मुड़ते ही सामने से ट्रक आता है और वो इनकी गाड़ी में लगता है। इस एक्सीडेंट में ज़ीशान के दोनों बाजू टूट जाते हैं। ज़ीशान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिन जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर कहता है ये बाजू ठीक तो हो जाएंगे, मगर शायद ठीक से काम नहीं कर सकेंगे। राबिया इस बात पर रोने लगती है। वो कहती है मेरे शौहर अब तक बिल्कुल ठीक थे। ये डॉक्टर तुम क्या कह रहे हो? जरूर डॉक्टर आपको गलत फहमी हुई है। डॉक्टर कहता है नहीं, जो मैं देख रहा हूं मैं वो बता रहा हूं, बिलीव करें ना करें ये आपकी मर्जी है। वो कहती है डॉक्टर साहब आप कोशिश तो करके देखें, शायद ये ठीक हो जाए। डॉक्टर कहता है मैडम हम अब तक कोशिश ही तो करते रहे हैं, हमारी कोशिश नाकाम हो चुकी है, इनका ये इलाज शायद पूरी दुनिया में नहीं। खैर आप अपनी तसल्ली कीजिए, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर ये सब कहते हुए चला जाता है कमरे से बाहर। ज़ीशान राबिया से एक बात कहता है। वो कहता है अक्सर इंसान जो करता है ना वो भरना पड़ता है। कभी कभी किए हुए गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। राबिया कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? ज़ीशान कहता है मैं जो कहना चाहता हूं उसे तुम अच्छी तरह से समझ रही हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम दोनों ने मिलकर हैदर के साथ धोखा किया। ये एक्सीडेंट मुझे लगता है मेरे उसी गुनाह की सजा है। राबिया कहती है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़ीशान कहता है नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है कि जैसे जो हमने हैदर के साथ किया वही हमारे साथ हुआ। राबिया इस बात पर यकीन नहीं करती। ज़ीशान राबिया को कहता है तुम मुझसे एक वादा करो, तुम एक बार हैदर के पास जाओगी, तुम उसे मिल के आओगी, तुम देख के आओगी वो किस हाल में है, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। हमने पलट के उसकी खबर नहीं ली, मेरा वो दोस्त था, मुझे भी नहीं ऐसा करना चाहिए था। राबिया कहती है ठीक है मैं जाऊंगी, मैं पता करूंगी कि वो कैसा है, तुम आराम से सो जाओ। ज़ीशान कहता है मैं सो जाऊंगा लेकिन तुम मुझसे वादा करो। राबिया उससे वादा कर लेती है कि वो हैदर का हाल दरियाफ्त करने के लिए जरूर जाएगी। फिर वो खुद से सवाल करती है मैं कैसे सामना करूंगी उसका, उसके कई सवाल होंगे, उसके उन सवालों का जवाब मैं कैसे दे सकूंगी। राबिया खुद से कहती है। ज़ीशान दिल की बात समझ जाता है। वो कहता है तुम यही सोच रही हो ना कि तुम उसके सवालों के जवाब उसे कैसे दोगी, बस कह देना जो नसीब में लिखा था हो गया, और फिर मेरी तबीयत का भी बता देना, उम्मीद है उसका ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा और वो तुमसे ज्यादा सवाल नहीं करेगा। राबिया कहती है ठीक है मैं कल सुबह चले जाऊंगी। इसके बाद ज़ीशान सो जाता है और राबिया सारी रात बैठकर यही सोचती रहती है कि उसे हैदर का सामना कैसे करना है। अगले दिन सुबह राबिया नाश्ता करने के बाद फौरन हैदर की तरफ जाने की तैयारी करने लगती है। वो एक मुलाजिम को आवाज देती है सगीर चाचा इधर आए। सगीर चाचा उसकी आवाज सुनते ही जी मैडम आया का कहते ही उसके पास पहुंच जाता है। वो कहते है जी मैडम बोलिए। राबिया कहती है ड्राइवर को कहिए कि गाड़ी निकाले। वो जी मैडम कहता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वही ड्राइवर आके खबर देता है कि मैडम गाड़ी गैराज से निकल गई है, आप आ जाइए। राबिया उसकी बात सुनते ही उसके साथ चल पड़ती है। राबिया गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को हैदर के घर की तरफ जाने का कहती है। ड्राइवर को ये बात मालूम होती है कि हैदर का घर कहाँ है, क्योंकि वो ज़ीशान का दोस्त था, इसलिए ड्राइवर को पता था कि साहब के दोस्त किधर रहते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वो लोग हैदर के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे की बेल बजते ही एक खातून बाहर आती है। वो राबिया से कहती है जी बेटी आप कौन? राबिया कहती है जी मैं हैदर की दोस्त हूँ और हैदर से मिलने आई हूँ, आप कौन है? वो औरत कहती है मैं हैदर की खाला शबाना हूँ। हैदर से क्या काम था आपको? राबिया कहती है मैं हैदर से मिलने आई थी, सोचा पता करती जाऊं हैदर कैसा है, काफी दिनों से मिला नहीं इस वजह से। शबाना बेगम कहती हैं हैदर पिछले 3-4 दिनों से हॉस्पिटल में दाखिल है,
मेरी बहन रिजवाना भी हैदर के साथ है। मैं इधर घर की देखभाल करने के लिए रुकी हुई हूँ। राबिया पूछती है, कौन से हॉस्पिटल में और उसे क्या हुआ? शबाना बेगम कहती है, वो यहाँ सिटी हॉस्पिटल में है। कुछ दिन पहले उसको दिल की तकलीफ हुई थी और मेरी बहन उसको लेके हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर्स ने उसको एडमिट कर लिया। वो कहती है, ठीक है, मैं उससे मिल लेती हूँ जाके। राबिया अपने ड्राइवर को सिटी हॉस्पिटल जाने का कहती है और ड्राइवर उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल चला जाता है। सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे माजिद मिल जाता है। वो कहता है, राबिया तुम क्या करने आई हो? तुम्हें पता है हैदर की बीमारी की वजह तुम हो। वो तुम्हें ही सोचता था, अगर तुम जाओगी तो वो मर जाएगा, तुम नहीं जाओ, उसकी बहुत तबीयत खराब है। राबिया कहती है, नहीं, मुझे हैदर से मिलना है। उसकी अगर बीमारी की वजह मैं हूँ तो मैं ही उसका इलाज हूँ, मैं उसे मिलूंगी। रिजवाना बेगम इन दोनों को बातें करते देख के आ जाती है और वो माजिद से पूछती है, यही वो लड़की राबिया है? माजिद कहता है, हाँ आंटी, यही वो लड़की राबिया है। रिजवाना बेगम उसे बोलती है, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस हाल को पहुंचा है। राबिया कहती है, मैं माजरत खा हूँ आंटी, अगर मेरी वजह से हैदर को तकलीफ हुई है तो। हैदर है कहाँ? वो कहती है आईसीयू में है। राबिया कहती है, मुझे उसके पास ले चले। रिजवाना बेगम राबिया को लेकर आईसीयू का सफर शुरू करती हैं। कुछ देर बाद वो दरवाजे के सामने पहुंच जाती हैं। राबिया वहां खड़ी होकर सोचने लगती है कि इस दरवाजे के पीछे वो है जिसकी मैं मुजरिम हूँ। मैं किस तरह से नजरें मिलाऊंगी उससे। इतनी देर में रिजवाना बेगम दरवाजा खोल देती हैं। वो जाके बैठती है हैदर के पास और वो देखती है कि हैदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो पहले से कमजोर हो चुका था। हैदर के साथ चिपकी हुई चंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस बात का सबूत थी कि ये बहुत सीरियस है, ये बात नहीं करता है। रिजवाना बेगम कहती है, कभी कभी बोलता है, कुछ ज्यादा नहीं, बस मुझे बुला लेता है या माजिद को, नहीं तो कोई बात नहीं करता। राबिया हैदर को आवाज देती है, हैदर। वो कहता है, राबिया। बहुत मध्यम सी आवाज में उसे राबिया पुकारता है। राबिया कहती है, देखो तुम ठीक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैदर कहता है, कुछ भी ठीक नहीं होगा, जो मेरे साथ होना था वो हो गया, अब मैं नहीं ठीक हो सकता। तुम जहां से आई थी वहां चली जाओ। राबिया कहती है, नहीं, अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे मैं तब तक नहीं यहाँ से जाऊंगी। थोड़ी देर बाद एक स्टाफ नर्स आईसीयू में एंटर होती है और वो राबिया से कहती है, एक्सक्यूज मी मैम, पेशेंट के खाने का वक्त हो गया है, मैं इसे खुराक देना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगी? राबिया कहती है, हाँ क्यों नहीं। वो कहती है, अब स्ट्रेचर को थोड़ा ऊंचा कर दें, इसके बाद अब इसे हल्की हल्की ग़िज़ा खिलाइएगा, पेशेंट को नरम ग़िज़ा ही देनी है। राबिया स्ट्रेचर को ऊपर करती है। स्ट्रेचर किसी तकनीकी खराबी की वजह से ऊपर नहीं होता है। राबिया स्ट्रेचर पे हैदर के पास चली जाती है। वो उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। हैदर राबिया से अपनी कमजोर आवाज में कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ राबिया। वो कहती है, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। हैदर कहता है, मोहब्बतों की जिसे दास्तां सुनाओगे, मोहब्बतों की जिसे दास्तां सुनाओगे, हमारा नाम उसे लाजमी बताओगे। हमारा वक्त वो लम्हे तमाम यादें भी, हमारा वक्त वो लम्हे तमाम यादें भी, सभी वादे समेट कर उसे सुनाओगे। मेरी तस्वीर बनाकर इन अपने हाथों से, मेरी तस्वीर बनाकर इन अपने हाथों से, पहले देखोगे
तो फिर देख कर मिटाओगे। कभी तन्हाई में बातें भी करोगी मुझसे, कभी तन्हाई में बातें भी करोगी मुझसे, बेख्याली में अपना हाथ भी बढ़ाओगे। बिछड़ के दूर बहुत दूर जा रहा हूं मैं तुझसे, बिछड़ के दूर बहुत दूर जा रहा हूं मैं तुझसे। तुम चाह कर भी कभी भूल नहीं पाओगे। उठा के खाक मेरी कब्र से तुम जान मेरी, उठा के खाक मेरी कब्र से तुम जान मेरी। मेरा शकील है रो रो के ये बताओगे, मोहब्बतों की जिसे दास्तां सुनाओगे, हमारा नाम उसे लाज़मी बताओगे। हैदर को गोद में सुलाए राबिया रोने लगती है। वो खुद को कोसने लगती है कि हैदर आज इस हाल को मेरी वजह से पहुंचा है। जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। राबिया हैदर को आवाज देती है, हैदर मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। हैदर मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। वो हैदर को झंझोड़ती है, मगर हैदर इस दुनिया से जा चुका होता है। हैदर राबिया की गोद में अपना सर रखे खालिक हकीकी से जा मिलता है। हैदर की मौत के बाद ये दास्तान इख्तिताम को पहुंचती है। दास्तान जिस चीज को अच्छी लगी वो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर वो पहली बार हमारे चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।